in electrochemistry, and in this lecture we will study about the electrolytic cells. Now what is the meaning of electrochemical cell? An electrochemical cell consists of two metal plates और कार्बन रॉड्स. कार्बन का एलोट्रॉप लिया जाएगा यहाँ पे ग्रेफाइट. These electronic conductors are dipped into an electrolytic or ionic conductor. Electrochemical cells are of two types. Electrochemical reactions are redox reactions. What is the meaning of redox reaction? The process or the reaction in which oxidation and reduction reactions take place simultaneously. It is known as redox reaction, and this chapter was in 11th standard. You know very well about the redox reactions. अब सेल है, जब सेल वर्ड आएगा तो इसमें रहेगा आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए एक कंटेनर विच इज़ मेड फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक और ग्लास. उसमें प्लेट्स रहेंगी विच आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. एक कंटेनर, उसमें प्लेट्स दैट आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट दैट इज़ इन फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वियस फॉर्म. ये इतना आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए जब एक सेल वर्ड आपके सामने आए तब. Now, what is the meaning of electrode? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन होंगे either in electrolytic cell or galvanic cell, and the reaction is redox reaction. What is the meaning of electrode? Electrodes are the surfaces on which oxidation and reduction half reaction take place. इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड. And electrodes may or may not participate in the reaction, and the electrodes which do not take part in the reactions are inert electrodes. जिन इलेक्ट्रोड का पार्टिसिपेशन रिएक्शन में नहीं रहेगा उसको कहा जाएगा इनर्ट इलेक्ट्रोड. अब इलेक्ट्रोड वर्ड आया तो यहाँ पे दो प्लेट है ना, दो प्लेट इसका मतलब दो इलेक्ट्रोड्स. वन एक्ट्स एज अ कैथोड एंड अदर एक्ट्स एज एन एनोड. What is the meaning of cathode? It is an electrode at which the reduction takes place. Anode is an electrode at which oxidation takes place. जो यहाँ पे कैथोड रहेगा उसमें उसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होगा, and at this electrode the species undergoing reduction gains electrons. It is about the cathode. And anode is an electrode at which oxidation takes place, and at this electrode the species undergoing oxidation loses electrons. Reduction reaction पता है आपको, that is gain of electron. Oxidation reaction is loss of electron. और जिस प्रोसेस में ये दोनों रिएक्शन एक साथ चलेगा that process और that reaction is known as redox reaction. Types of electrochemical cells. There are two types of electrochemical cells. One is electrolytic cell and other is galvanic or voltaic cell. What is the meaning of electrolytic cell? In this type of cell are non-spontaneous reaction known as electrolysis is forced to occur by passing a direct current from an external source into the solution. In this type of a cell, a non-spontaneous reaction, the process or reaction which does not take place on its own, on its accord, that process or reaction is known as non-spontaneous reaction. This reaction is forced to occur by passing a direct current from an external source. When external source is supplied, at that time the reaction take place. That type of reaction is known as non-spontaneous reaction, and in electrolytic cell non-spontaneous redox reaction takes place. In electrolytic cell electrolysis is carried out.
In electrolytic cell, electrolysis is carried out, and electrolysis is carried out by supplying the external force, and in electrolytic cell a non-spontaneous redox reaction takes place. In electrolytic cell, electrical energy is converted into chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब दैट एनर्जी इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आफ्टर सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज़ electrical energy is converted into chemical energy, and the anode of electrolytic cell is positive and cathode is negative. ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है. इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल MCQ का क्वेश्चन या तो फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये बनता है ये. इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज़ पॉजिटिव एंड कैथोड इज़ निगेटिव एंड. नाउ सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल. ये नाम के ऊपर है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक. यहाँ पे G कैपिटल रहेगा और यहाँ पे ये V कैपिटल है. इट इज़ स्मॉल लेटर, सॉरी, G इट इज़ इन कैपिटल लेटर. इन गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन produces electricity, and in these cells chemical energy is converted into electrical energy, and anode of the galvanic cell is negative and cathode is positive. जो कैथोड रहेगा that is positive end in case of galvanic cell, and anode is negative end. गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में व्हाट हैपन्स, केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ इन सच सेल्स स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. ये भी जो पहला सेंटेंस इसमें है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इस पर भी MCQ का क्वेश्चन बनता है, और गैल्वेनिक सेल में ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें भी MCQ का क्वेश्चन बनता है. इट इज़ एंड दिस क्वेश्चन इट इज़ फॉर 1 मार्क. नाउ first we will discuss about the electrolytic cell. Electrolytic cell consists of a container or a vessel in which electrolyte is placed, and this container is made from a non-conducting material. 2 electrodes are immersed in the electrolyte and connected to a source of direct current. 2 electrodes, one is cathode and other is anode. और यहाँ पे द एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ पॉजिटिव एंड कैथोड इज़ निगेटिव, एंड एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एंड एट कैथोड द रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब यहाँ पे एनोड पे जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, इसका मतलब एट एनोड देयर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम एनोड एंड पुश्ड टू द कैथोड थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट. तो फिर जब जाएगा कैथोड पर तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और जो स्पीसीज़ रहेगा दैट स्पीसीज़ विल बी रिड्यूस्ड. एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एंड एनोड इज़ पॉजिटिव एंड कैथोड इज़ निगेटिव एंड इट इज़ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. नाउ here we will discuss about the electrolysis of fused NaCl and aqueous NaCl. And what is the meaning of electrolysis? Electrolysis is the process of breaking down of an ionic compound in molten state or in aqueous solution by the passage of electricity. ये भी MCQ का क्वेश्चन बनता है. What is the it is for very short answer type question. What is electrolysis? ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होगा? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वियस सॉल्यूशन बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन अ कंटेनर इन अ सेल which is known as electrolytic cell. So first we will discuss about the electrolysis of molten NaCl, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल. 3 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है, 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन.
यहाँ पे फिगर जब भी आप ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने, यहाँ पे जब फिगर आप ड्रॉ करेंगे, 2 मार्क का फिगर अगर सिर्फ आया, यहाँ पे ड्रॉ द डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl और एक्वियस NaCl, 2 मार्क का, तो यहाँ पे 1 मार्क फिगर ड्रॉ करने की है और 1 मार्क यहाँ पे लेबलिंग की रहेगी। जब भी आप करेंगे तो एनोड और कैथोड दिखाना कंपलसरी है, विच वन इज़ पॉजिटिव एंड एंड विच वन इज़ नेगेटिव एंड, और इलेक्ट्रोलाइट दिखाना कंपलसरी है। ठीक है, ये दोनों लेबलिंग में रहना ही चाहिए, और बाकी जितना भी आप करेंगे और ये कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट का नाम नहीं रहेगा तो लेबलिंग की आपको मार्क नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है इट इज़ पॉजिटिव एंड कैथोड इट इज़ द नेगेटिव एंड। नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड का मतलब क्या है, जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं हम, बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड रहेगा दैट एंड विल बी पॉजिटिव एंड। बैटरी का नेगेटिव एंड जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड रहेगा दैट विल बी नेगेटिव एंड। एंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज़ पॉजिटिव एंड एंड कैथोड इज़ नेगेटिव एंड। ये मतलब होगा इसका, बैटरी का पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इलेक्ट्रोलाइट इज़ फ्यूज्ड NaCl, सो इट इज़ द कंस्ट्रक्शन। ये फिगर रहेगा, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, और डायग्राम ड्रॉ करना है विथ करेक्ट लेबलिंग जब भी आप करेंगे सेल की तो इलेक्ट्रोलाइट दिखाना कंपलसरी है, और कैथोड और एनोड ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दिखाना कंपलसरी है ना। और यहाँ पे 2-3 सेंटेंस आपको इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना रहेगा। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर इन विच फ्यूज्ड NaCl इज़ प्लेस्ड, it is the container, and in this fused NaCl is taken, 2 graphite electrodes are immersed in it। ये एक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये दूसरा ग्रेफाइट, यहाँ लिख सकते हैं आप, कार्बन लिखेंगे तब भी सही रहेगा, ग्रेफाइट लिखेंगे तब भी सही रहेगा। what is graphite? It is one of the allotrope of carbon. They are connected by metallic wires to a source of direct current, that is battery। ये मेटेलिक वायर, ठीक है, ये मेटेलिक वायर यहाँ पे है, विच इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, दैट इज़ बैटरी। ये बैटरी रहेगा विच इज़ द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। सो इट इज़ अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। यहाँ पे आता है, क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl इज़ कैरीड आउट। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, और यहाँ वर्किंग में आपको रिएक्शन आपको बताना रहेगा। ठीक है, रिएक्शंस और वर्किंग। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शंस इन द सेल, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड, यहाँ पे जब फ्यूज्ड NaCl हम लेंगे, फ्यूज्ड टू फ्यूज़ मीन्स टू मेल्ट, मोल्टन कंडीशन में NaCl लेंगे, एट दैट टाइम इन फ्यूज्ड NaCl Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन्स आर फ्रीली मूव। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कैरीड आउट बाय मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। ये MCQ का एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसका आंसर रहेगा फ्री आयंस। जब NaCl हम लेंगे फ्यूज्ड स्टेट में तो उसमें Na प्लस आयन और Cl माइनस आयंस रहेंगे विच आर फ्री टू मूव, और इनकी वजह से यहाँ पे कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। एंड व्हेन पोटेंशियल इज़ अप्लाइड, कैथोड अट्रैक्ट्स Na प्लस आयंस एंड एनोड अट्रैक्ट्स Cl माइनस आयन। ये एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड को अट्रैक्ट करेगा, कैथोड Cl माइनस आयन is attracted towards anode and cathode attracts Na plus ion, and as these are the charged particles their migration results in an electric current।
यहाँ पे इनका माइग्रेशन होगा एंड ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ दीज आयंस टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स द इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देखते हैं हम Cl माइनस एनोड की तरफ कौन जा रहा है, ये Cl माइनस आयन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा 2Cl माइनस इन लिक्विड स्टेट, इट इज़ L, इट इज़ फॉर लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दिस Cl माइनस आयन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स and Cl gas these are formed and it is the primary process. Now what happens in the secondary process, these two chlorine atoms in gaseous state combine together and form chlorine molecule which is in gaseous state and it is the secondary process. Now यहाँ पे हम इन दोनों रिएक्शंस को जब कंबाइन करेंगे Cl गैस ये राइट साइड में है और सेकेंडरी प्रोसेस में लेफ्ट साइड में, दीज टू गेट्स कैंसल्ड एंड वी विल गेट 2Cl माइनस इन लिक्विड स्टेट गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ द ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे तब भी सही रहेगा, आप ये 3 स्टेप में रिएक्शन लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन takes place at cathode. Towards cathode, Na plus ions migrate. At that time, Na plus ion will accept an electron and there is a formation of Na in liquid state. It is the reduction reaction. Reduction reaction में क्या होगा, यहाँ पे cathode पे जो reaction होगा that is reduction reaction and the electrons supplied by the battery are used in cathodic reduction. Each Na plus ion accepts an electron from the cathode and reduces to the metallic sodium. Now we will write here net cell reaction. Total reaction हमको लिखना है which is the combination of oxidation half reaction and reduction half reaction. The net cell reaction, it is the sum of 2 electrode reactions, oxidation half reaction and reduction half reactions. एंड इट इज़ द ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये Cl2 है, इट इज़ इन गैसियस स्टेट एंड इट इज़ सोडियम इन लिक्विड स्टेट एंड इट इज़ द ओवरऑल सेल रिएक्शन। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl? रिजल्ट्स है इसका मतलब एनोड पे क्या लिबरेट होगा, क्या डिपॉजिट होगा वो लिखना है आपको। इसी तरह आपको कैथोड का दिखाना रहेगा। अ पेल ग्रीन Cl2 गैस इज़ रिलीज्ड एट एनोड and a molten silvery white sodium is formed at the cathode. एनोड पर पेल ग्रीन कलर की गैस लिबरेट होगी, रिलीज होगी, दैट इज़ क्लोरीन गैस, और कैथोड के ऊपर मोल्टन सिल्वरी वाइट सोडियम इज़ फॉर्म्ड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl into metallic sodium and Cl2 gas is non-spontaneous. The electrical energy supplied by the battery forces the reaction to occur. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी फोर्सेस द रिएक्शन टू अकर। तो यहाँ पे ये जो बैटरी रहेगी ये फोर्स करेगी, ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन को सक करेगी फ्रॉम एनोड और फिर यहाँ पे वो कैथोड की तरफ उसको वो देगा वो, तो फिर कैथोड पर जब रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो जो सोडियम रहेगा सिल्वरी वाइट सोडियम दैट इज़ डिपॉजिटेड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। एक्वियस NaCl है जो फिगर है, the figure is same as that of electrolysis of fused NaCl. The difference is that the electrolyte is aqueous NaCl. The electrolytic cell consists of a container in which aqueous NaCl is placed. 2 graphite electrodes are immersed in it and they are connected to the battery. जैसा कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl का है, सेम कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl का आपको ड्रॉ करना रहेगा। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, फ्यूज्ड NaCl की जगह आपको एक्वियस NaCl लिखना रहेगा।
Now, what are the reactions? Reduction half reaction and oxidation half reaction. अब जो इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इलेक्ट्रोलाइट इज़ एक्वियस NaCl. इसमें दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो वाटर है और दूसरा NaCl है. देयरफॉर एट कैथोड two reduction reactions compete each other. One is reduction of Na plus ions as in case of molten NaCl, and the other is the reduction of water to hydrogen gas. First reaction, Na plus ion plus electron, there is a formation of sodium in solid state. E0 reduction, it is equal to minus 2.71 volt. E0, it is the standard reduction potential for this reaction. Na plus ion reduces to Na in solid state, and for this process standard reduction potential is equal to minus 2.71 volt. Second reaction is the reduction of water to the hydrogen gas H2O in liquid state plus electron. There is liberation of hydrogen gas with the formation of OH minus ion in aqueous form. ये सब बैलेंस करने के लिए सब कोएफिशिएंट्स लगाए गए हैं, you know very well. And for this process the standard reduction potential is equal to minus 0.83 volt. Now here the standard potential for the reduction of water is higher than that of reduction of Na plus ion. ये है minus 2.71 volt and it is minus 0.83 volt. Higher value is minus 0.83 volt. जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जिस रिएक्शन का, दैट रिएक्शन विल अकर एट द कैथोड. देयरफॉर द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ वाटर is higher than that for reduction of Na plus ion. Therefore, it means that water has much greater tendency to get reduced than the Na plus ion. Therefore, this second reaction, what is second reaction? The reduction of water at the cathode. It is the cathode reaction when the aqueous NaCl is electrolyzed. यहाँ पे इतना सारा आपको बताना रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक वाटर है और दूसरा NaCl है. कैथोड पर दो रिएक्शन होगा जो एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगे. कौन सा रिएक्शन होगा इसका डिसीजन हम लेंगे बाय ऑब्जर्विंग E0 वैल्यूज़. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को जब हम देखेंगे तो जो हायर वैल्यू है दैट रिएक्शन विल टेक प्लेस एट द कैथोड. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड. हियर ऑल्सो टू रिएक्शंस compete each other. At anode there will be competition between oxidation of Cl minus ion to Cl2 gas as in case of molten NaCl and the oxidation of water to O2 gas. Two reactions are 2Cl minus gives Cl2 gas plus 2 electrons. It is the standard oxidation potential is equal to minus 1.36 volt. Second reaction is 2H2O in liquid state gives O2 gas plus 4H plus ions in aqueous form plus 2 electrons. Standard oxidation potential for this reaction is minus 0.4 volt. Standard electrode potential for the oxidation of water is greater than that of Cl minus. Standard electrode potential for the oxidation of water is greater than that of Cl minus. Now यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट, therefore it is expected that the anode half reaction would be the oxidation of water. लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस shows that the gas produced at anode is pale green in color, which is of chlorine gas and not O2 gas.
It means that anode reaction is oxidation of Cl2 minus 2Cl2 gas, and this is because of over voltage. यहाँ पे होना क्या चाहिए था, -0.4. This value is higher than -1.36 volt. It is the expected reaction. Which one is expected reaction? That at anode oxygen gas should be liberated, but experiment shows that at anode pale green colored gas is liberated, and we know that pale green gas is chlorine gas. होना चाहिए था ये सेकंड रिएक्शन, लेकिन ऑब्जर्वेशन में है फर्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इट इज़ ड्यू टू ओवर वोल्टेज. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवर वोल्टेज? Additional voltage required is the over voltage. This additional voltage is required because the rate of transfer of electrons at the interface of electrode and solution for both the half reactions is slow, and over voltage for the formation of oxygen is much higher than that required for the formation of chlorine. इसके लिए ओवर वोल्टेज क्यों लग रहा है यहाँ पे? बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ हाई. ओवर वोल्टेज ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाइयर देन दैट ऑफ क्लोरीन. हेंस द हाफ रिएक्शन एट एनोड इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ Cl-2 गैस. ओवर वोल्टेज यहाँ पे सेकंड रिएक्शन के लिए ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर्ड टू दैट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन. देयरफॉर यहाँ पे दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, फर्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड. इट इज़ ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ ओवर वोल्टेज. नाउ वी विल राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन. इट इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस. कौन कौन सा रिएक्शन रहेगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज़ द लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस एट एनोड. और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इज़ लिबरेटेड एट कैथोड. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे हम, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को हम ऐड करेंगे. इट इज़ द ओवरऑल सेल रिएक्शन. तो यहाँ पे जब आप रिएक्शन लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दीज टू रिएक्शंस मस्ट बी रिटन. जब आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैथोड पर लिखेंगे उस वक्त भी आपको दो रिएक्शन लिखना रहेगा. ओवरऑल सेल रिएक्शन में यू हैव टू राइट दीज थ्री रिएक्शंस. वन इज़ ऑक्सीडेशन, सेकंड इज़ रिडक्शन रिएक्शन, एंड थर्ड इज़ ओवरऑल सेल रिएक्शन. You have to write these three reactions. Now, what are the results of electrolysis of aqueous NaCl? इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे? हाइड्रोजन गैस इज़ लिबरेटेड एट कैथोड, क्लोरीन गैस इज़ रिलीज्ड एट एनोड. दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क. MCQ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं. इस पे MCQ का क्वेश्चन बनता है. क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसका आंसर रहेगा हाइड्रोजन गैस और कैथोड और क्लोरीन गैस और एनोड. बिकॉज Na+ आयन्स रिमेन अनरिएक्टेड एंड OH- आयन्स आर फॉर्म्ड एट कैथोड, NaCl solution is converted to NaOH solution. ये Na+ आयन और ये OH- आयन्स, these two ions combine together and there is formation of NaOH, and it is one of the chemical which is used for the formation of soaps and detergents. ये NaOH यूज़ होता है सोप इंडस्ट्री में, इसका यूज़ होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स प्रिपेयर करने के लिए. सो इट इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एंड एक्वियस NaCl. एंड जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दीज आर carried out by the electrolysis process. So it is about the electrolysis of fused and aqueous NaCl. You have to read the book thoroughly. यहाँ पे बुक की आपको स्टडी करना है और जो चैप्टर में सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको आपको सॉल्व करना रहेगा. बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, ठीक है.